on from the next class. Can you please turn your cameras on and we will start the class. This move, yeah, it's on. Begin myself. What about others? Okay. Yes, Razan, Fia, and Deborah. I think last class में आप लोगों ने कहा था we will turn the cameras on. You just turn it on, Deborah. वो तो कुछ बताएगा ना कि क्यों नहीं ऑन हो रहा है, क्यों ऑन हो रहा है. कैमरा का ऑप्शन अगर कहीं पे आता है ना, देन यू कैन टर्न इट ऑन. जैसे माइक का ऑप्शन आ रहा है तो माइक ऑन कर सकते हैं आप. ओके फिया, वेटिंग फॉर राजन. In last lecture we completed all the method of preparation of aldehydes, and today we will start the method of preparation of, please write next, B part, that is method of preparation of ketones only. Ketones only. ठीक है. अच्छा, there are a few suggestions for you guys. अगर आपको if you turn the camera on, then you will see an option like this. ठीक है. आपके पास एक इस तरह का ऑप्शन होगा ना, स्टॉप वीडियो वाला. If you guys are on laptop or computer, then you will have this blur my background option. इसको भी आप लोग चूज कर लीजिए तो आपका बैकग्राउंड जो है ना ब्लर हो जाएगा. एज यू कैन सी लाइक माय बैकग्राउंड इज ब्लर. अगर आपको लग रहा है लाइक यू आर इन द लिविंग रूम और समथिंग और कोई आसपास में आता जाता रहेगा तो इसलिए इफ यू वांट टू टर्न द बैकग्राउंड blur you can also do that. ठीक है. You go to the camera and then you have to click here this down arrow. I hope आप लोग इतना तो तेज होंगे. डाउन arrow क्लिक कीजिएगा फिर उसके बाद blur my background. That's it. ठीक है. चलिए. No, method of preparation of ketones only. In the last lecture we saw the method of preparation of aldehyde from of aldehydes only. Now, in this you write the number 1 reaction. Okay, I'm waiting for Razin and Deborah still. Razin, please turn your camera on. Now here please write from acyl chloride. From acyl chloride. Razin, by the way, if you have my number, you please message me. आपने message नहीं किया अभी तक. I will send you the recorded lectures now of the chapters which are coming for your test. फिर उसके बाद एक आपके साथ डाउट क्लास भी लेना पड़ेगा. ठीक है. Please see guys, from acyl chloride. What is acyl chloride? Acyl chloride is R C double bond O bonded with Cl plus we have R dash whole twice cadmium. This is dialkyl. R group is known as alkyl group and this is cadmium. We have 2 R, so it will be dialkyl cadmium. When both of these react, it leads to formation of what happens here. Please see. The chlorine from the acyl chloride, it is replaced by the alkyl group. It is replaced by the alkyl group. So you will get R, C double bond O as it is, and then you will get R dash. So this is what this is, the formation of ketones, right? We cannot form aldehyde from these things. We can only prepare what ketones. For example, if you have CH3, C double bond O, Cl, plus you have CH3 whole twice, cadmium. Please see how to make the product. You will write the CH3 C double bond O as it is. The another alkyl group will be coming from the cadmium. So if here we have CH3, so that will be CH3 only, one CH3. See next. If you have, let us suppose something like this, CH3
CH2 C double bond O Cl plus CH3 whole twice cadmium. Then what we will be getting? Here you have CH3 CH2 CO. So you will get the same thing, CH3 CH2 C double bond O. And then the another alkyl group will be CH3 from the dialkyl cadmium. That's CH3 like this. If you have, let us suppose, C double bond O Cl plus Ca2HCH, ऐसे मान लीजिए आपके पास C2H5. You have C2H5 whole twice cadmium. Then you will get 1, 2, 3 carbon atom, C double bond O as it is. Then two carbon atom alkyl group, that means ethyl group from the dialkyl cadmium part. Please write this down. Razin, what happened? Am I audible, Razin? Yes, sir. Yeah. Copy this down. Let me know once you're done. Next, you will see how will we prepare this dialkyl cadmium. So please write here. Preparation of dialkyl cadmium. No. Dialkyl cadmium, it is prepared by Grignard reagent. You will have R-MgBr, any Grignard reagent. You will react this with cadmium chloride, CdCl2 whole twice. And this will be converted to, the chlorine will go to the MgBrCl and we will get R- whole twice C. For example, if you have CH3 MgBr plus CdCl2, you will get CH3 whole twice cadmium. If you have something else, for example, you have 2 carbon atoms MgBr or MgCl also you can have, no issues in that. Plus you have CdCl2. You will get, this is 2 carbon atoms, that means C2H5. You will get C2H5 whole twice and C. ठीक है, इस वजह से अगर आपके पास कुछ इस तरह का सवाल आ गया ना, देखिए ध्यान से देखिएगा all of you guys. You have something like this. Sir, can you explain this again, sir? Just a second. MgBr. This R group ना, यहाँ पे क्लोरीन है 2. So this chlorine, it is replaced by the R-. The alkyl group is replacing the chlorine of cadmium. So 2 chlorine थे, so there will be 2 alkyl groups also. अगर आपको ये लग रहा है कि सर बैलेंस कैसे होगा, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, but I think I hope you all know that in organic chemistry balanced chemical reactions are not very important. Important parts are is the product. ठीक है, बात समझ में आ गई फिर? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. For example, if you have something like this, 1, 2 carbon atoms and MgBr, and in the first step they are reacting this with cadmium chloride, and in the second step they are reacting this with COCl. That is, suppose we have 4 carbon atoms and COCl. ठीक है, COCl. Then what is going to happen? So this carbonyl group will be as it is, 1, 2, 3, 4 carbon atoms, double bond O, and then further it will be joined with C2H5, this 2 carbon atoms. So if I write it in some different colors, suppose this is red. So this much portion, it is coming from the Grignard reagent. And let us suppose this is blue.
So this portion it is coming from, just a second. This portion it is coming. This portion is coming from the, नहीं आया क्या? My bad guys, एक second. All of you, this session officially. The CH3, CH2, C double bond O, it is coming from the acyl chloride, this part. And this part, the ethyl group that is attached on the carbonyl carbon, it is coming from the grignard. Suppose समझ में आया? और ये तो just bond है ना, ये तो attachment है. Carbonyl का bond ethyl के साथ. This is just a bond. वहाँ पे कोई carbons नहीं है. All of you got this? SNOP shall me? ये दोनों join हो रहे हैं cells. Yes, sir. बाकी राजन एंड फिया, राजन फिया फादिल आए थे, फादिल चले गए. तो समझ में आया? आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए. Oh, yes, sir. Right, next. From nitriles using Grignard reagent. Second method of preparation. From nitriles using Grignard reagent. Now, first of all, what is Grignard reagent? We all know that is R, MgBr or MgCl. Okay, MgX basically, plus we'll take R dash C triple bond N. Now this carbon atom, please see here guys, don't write now, okay? एक बार देख लीजिए फिर आराम से लिख लीजिएगा. Please leave your pen aside. Don't write anything and listen very properly. देखिए, ध्यान से देखिए. Here we have nitrogen atom which is more electronegative. It will be pulling electrons from the carbon atom, making the carbon atom what? Highly delta positive. So this carbon atom is delta positive. Now this magnesium, it is a metal. Metal has a tendency to lose electron. This is something that you should remember. याद कर लीजिए, अगर आपको concept clear नहीं है तो धीरे-धीरे हो जाएगा. Metal क्या होता है? Metal has a tendency to lose electron. So this magnesium will be losing electron towards what? Towards the alkyl group. अगर किसी को नहीं ध्यान है तो देखिए, NaCl में Na positive होता है, lose electron. अगर zinc SO4 लिखिएगा ZnSO4 तो zinc 2+, lose electron. Metal की tendency क्या होती है? Metal has a tendency to lose electron. So it is giving electron towards the alkyl group, that is R. That is why it will be getting a delta negative charge. अब ध्यान से देखिए, this carbon is delta positive, this R is delta negative. So there will be attack from this R to this carbon atom. When R or any carbon atom, it attacks another carbon atom, the meaning is that they are trying to make a bond. What they are doing? They are trying to make a bond. So this R is trying to make a bond with this carbon atom. So carbon will say, I already have 4 bonds. Then please don't write, guys, please don't write. Listen. The carbon will say, I already have 4 bonds. So what will happen? It will say that, okay, fine, break one of the pi bonds. So one of the pi bond will be broken. ना 3 bond है, इसमें से एक sigma होगा, 2 pi होंगे. So one of the pi bond will be broken. And you will see a molecule like this. You will have R dash as it is, nothing is happening here. Then you have carbon, then you have double bond nitrogen. And this carbon is now having a new alkyl group attached, that is R. Now, since nitrogen is going to get a negative charge and Mg is giving electron, so Mg में positive आ जाएगा, so nitrogen and Mg will be bonded like this in MgBr. So nitrogen में actually क्या आ चुका है? Because it is getting electron to negative and magnesium का bond टूट रहा है, so it is getting positive. So it is having a addition product. Now after this, you don't need to do much. After this, you just need to add water in the presence of H plus in acidic condition. अब आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे this bond will break and you will get C double bond O. Just a second, you will get like this. R dash carbon double bond O and here you will get R. और इसके साथ क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन will get converted to NH3 plus you will get MgBrOH. All of you got this? Yes or no? Please tell me. तो बेसिकली आपको बस ध्यान ये रखना है, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? There are some alkyl groups getting attached. ठीक है? So let us suppose you start with CH3 CN. फर्स्ट स्टेप में आपको डाला गया है CH3 MgBr. In the second step, you have H plus in the presence of water. So you will have CH3. अब देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन. तो 3 कार्बन का आपको क्या बनाना है? कीटोन. You have to make a ketone of 3 carbon atoms. ठीक है? So please see, you have CH3, C double bond O, and then CH3.
This is very beautiful reaction. If you see, you are using this one. Let's suppose this is red. Then you are using this CH3MgBr. इसको blue कर देते हैं. And then you are using water molecule. इसको green कर देते हैं. ठीक है? Now please see here, guys. This CH3 and carbon, these two items are coming from the nitride. उसके बाद अगर आप देखें, this CH3 it is coming from what? This CH3 it is coming from the Grignard reagent. और अगर आप देखिएगा, this oxygen atom is coming from the water. बात समझ में आई सबको? सबको बात समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताएं. राजन, सफिया, फिया, ऑल गुड? सब सही? Yes, sir. ठीक है सर? Yes, sir. चलिए एक सवाल हम दे रहे हैं, उसको बनाइए आप लोग. You have let us suppose 1, 2, 3 कार्बन एटम्स CN, एंड सेकंड में है आपके पास 1, 2 कार्बन एटम MgBr. सॉरी, इसको फर्स्ट स्टेप होगा ये. सेकंड स्टेप विल बी H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. ठीक है, तो बस आपने ये ध्यान रखना, 1, 2, 3 कार्बन एटम्स, इससे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद क्या जुड़ेगा? 1 और 2 कार्बन एटम्स. ठीक है, तो 5 कार्बन एटम का, और तीसरे कार्बन में आपको मिलेगा कीटोन. जल्दी बनाइए. Once you're done, you will send the answer on my WhatsApp. अच्छा, किसी ने आज हमने ये भेजा था. सफिया, आपसे कौन से 2 सवाल नहीं हुए थे? 3rd and 9th. Third and ninth one. How will you obtain benzaldehyde from phenol? ये वाला सवाल. Yes, sir. 9th क्या है? 9th का तीसरा वाला. Yes, sir. 9th का तीसरा वाला हो जाना चाहिए था आपसे. फेनॉल वाला हमको समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा. कर देते हैं लेकिन दोनों को, है ना? बाकी लोगों ने नहीं भेजा. कुछ असाइनमेंट वगैरह करते नहीं है क्या आप लोग? Send your answer, guys. Take 2 more minutes. पिया, आंसर तो सही. थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं ना? क्या ख्याल है पिया? एक दो, मतलब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं. मतलब सही है बिल्कुल. आपको कोई मार्क्स नहीं काट सकता है इसमें. ठीक है ना? नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट एनी मार्क्स. But that MGBR, that marking is correct. MgBr का मार्क हम समझे नहीं, क्या बोल रहे हैं? No, इसके ऊपर, that ऊपर वाले में. ethyl group
is correct. हाँ, इथाइल ग्रुप बिल्कुल सही है आपका, सही है। Okay. बस थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, बस सही है। एंड अच्छा, you look please, what happened? Majid, am I audible? One, two, three. Yeah, very Yes, good, sir. Deborah. कैमरा नहीं ऑन करेंगे? आपने लास्ट क्लास में कहा था कैमरा ऑन कर लेंगे, क्या हो गया? What happened, Majid? क्या कर रहे हैं, क्या हुआ? राजिन नहीं हुआ आपसे? थैंक यू वेरी मच। डेबोरा, सफिया आप भेजिए जरा। अच्छा, डेबोरा ने क्या, अच्छा डेबोरा ये कह रही है कि इस तरह का ब्लैक आ जाता है। यस डेबोरा। Sir, can you explain the answer? ठीक है, आप थोड़ा सा हमारी मदद करेंगे जी। यस राजिन, कीप योर माइक ऑन। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे देखिए CH3NC, यानी जहां तक जितने कार्बन एटम्स है नाइट्राइल में वो तो यहाँ पे होंगे। सही है, कितने कार्बन एटम्स है नाइट्राइल में, काउंट कीजिए। 1, 2, 3. 3। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगेगा, क्या ख्याल है? Yeah. जहाँ पे नाइट्राइल था उस वाले पे डबल बॉन्ड O लगता। सही है। Yeah. उसके बाद देखिए 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 राजन, नहीं साथ साथ मत कॉपी कीजिए, एक बार समझ लीजिए, है ना। यहाँ देखिए फिर, और ये जो आपके पास कार्बन एटम है, दीज आर कमिंग फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है। Yeah. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन एटम्स हैं? 2. कितना लग जाएगा 2 कार्बन एटम ऐसे? Yeah. बस हो गया। Yes. Correct. Yeah. ठीक है, आप भेजे नहीं आंसर आपने? I was not sure, sir. I was not sure. हम आपके मार्क्स काट लेंगे क्या जी? आंसर भेजिए। देखिए एक चीज, आंसर सिर्फ नहीं देखना रहता, हमको बहुत सारी चीजें देखनी रहती है कि आपने सवाल सही से लिखा है नहीं लिखा है। हमको ये देखना रहता है कहाँ घूम फिर रहे हैं माजिद भाई। हाँ, इसीलिए तो कैमरा ऑन कराते हैं। माजिद साहब कहाँ घूम फिर रहे हैं? देखिए पकड़ा गया माजिद भाई, है ना। देखिए इधर, और if you guys please see, let us suppose you have something like this, CH3 CN plus I have a benzene ring that is having a Grignard reagent MgBr or MgCl. Yes, sir. I sent it to you. अच्छा, आपने भेज दिया, ठीक है, हम उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए, you will have CH3C और नाइट्राइल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, देन द होल अल्काइल ग्रुप जो Mg के साथ लगा है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो यू विल हैव बेंजीन रिंग, इस तरह से कर दीजिए आप इसको। ठीक है ना, इफ यू सी ये पार्ट जितना है, दिस इज एसिड ओफेनॉन। आज क्लास में पढ़ाया था, क्या मिल गया आपको? एसिटोफेनॉन। ठीक है, प्लीज छापी जल्दी। माजिद वापस आए कि नहीं आए आप? अभी तक नहीं आए ना जी? कहाँ गए थे? बोलो भाई, शर्मा रहे हैं माजिद साहब। हाँ, कहाँ गए थे माजिद भाई? बंद करनी है। डोर बंद करने गए थे। अच्छा, चलिए जल्दी लिखिए। क्लास में तो टाइम से आइए आप, ठीक है माजिद? ठीक है, आपका बहुत लेट आए हैं आप, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्रेस काफी सही है। ठीक है, टाइम से आया कीजिए। कोई आप किस तरह से करते हैं सर? पुराने चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट किया आपने? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं स्टार्ट किया आपने? कब स्टार्ट करेंगे? कुछ प्लान वगैरह कुछ तो बनाया है? अभी कुछ नहीं बनाया? कुछ नहीं, जल्दी बनाना स्टार्ट कीजिए प्लान वगैरह कम से कम। राइट दिस गाइस क्विकली। सबका हो गया तो आगे बढ़े। सबने लिख लिया? Yes. ठीक है, चलिए राइट नेक्स्ट। Sir, can you explain that one again?
ये वाला फिर से वही है ना, Yeah. CH3 में C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, एंड दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनिल कार्बन लग जाएगा, ठीक। Yeah. Got it. ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोबारा से, ठीक है ना। अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, वही रस्टी टाइप का, एक बार में नहीं आएगा। प्लीज रिवाइज, आई मीन रीडू ऑल द रिएक्शंस दैट वी आर डूइंग इन द क्लास, ठीक है राजन? Yes, sir. ओके, राइट, नेक्स्ट Friedel Craft acylation. Acylation of benzene. चलिए सफिया, बस ये वाला हमको कराने के बाद ना याद दिलाइएगा कि वो डाउट लेना है आपका, ठीक है ना, भूल जा रहे बार बार। टॉपिक स्टार्ट कर दे रहे हैं। Here guys, ध्यान से देखिए, you have benzene plus you have CH3 C double bond O Cl. This reaction is there in almost all the chapters और ये 11th क्लास में भी था। What will happen? This chlorine will be replaced by benzene. बस आपको ये देखना, this is acyl chloride. acyl chloride के क्लोरीन को हटा के क्या लगा दीजिए, बेंजीन। You will get CH3 C double bond O। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एनहाइड्रस AlCl3 होता है, लिख लीजिएगा, जरूरी है, एनहाइड्रस AlCl3, and instead of Cl you will be having benzene ring, ठीक है। Similarly you can have benzene, तो रहेगा ही रहेगा, rather than CH3 you will have 1 2, let us suppose 3 carbon atoms, C double bond O and then Cl. You just need to replace Cl by benzene, anhydrous AlCl3, 1 2 3 carbon atoms, double bond O, then benzene ring. मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से आ गया बेंजीन रिंग, and the acyl group, it is also something like this, benzene ring with a chlorine, C double bond O Cl. Same thing here also, anhydrous AlCl3, chlorine will be replaced by benzene ring, benzene ring C double bond O, another benzene ring. सारे केस में यही होगा, you have to replace chlorine with benzene, that's it. Friedel-Crafts acylation reaction. This also, we saw this reaction in haloalkane halorine, अल्कोहल के फिनॉल में देखा था हम लोगों ने, और एनिसोन में नहीं होता है। लिख लिया सबने, हाँ या ना? आगे बढ़े, ऑल ऑफ इट डन ना? सफिया, हाँ आपको करना Yes, ना sir. मुझे जी। Why is it not here? नॉट ओके, जल्दी लिखिए। Done, sir. एक तो ये सवाल था सफिया, है ना? Yes, sir. ध्यान से देखिए, देखिए NO2 को आपको देखना ही नहीं है, आप ये बताइए, आपने कम से कम इतना रिएक्शन तो देखा था ना, हमारे नोटबुक में है इतना, देखिए
टोलो, ये आपका बेंजीन रिंग CH3 CrO2 Cl2 है या नहीं वो देखिए आप सब। कोई रिएजेंट Yes. कहीं पे है? कौन सा है बताइए, क्या होगा? CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? CH3 किस में कन्वर्ट होगा? देख के बताइए, नोटबुक में देख के बताइए, अभी आपको अभी तरीके ले रहा हूँ। राजन एक सेकंड CHO, आप, CHO, CHO. हाँ CHO है ना, दिखा कि नहीं दिखा सफिया, आपको नहीं दिखा? Yeah. सफिया नहीं दिखा आपको? दिख गया CrO2 सर। Cl दिख गया? कौन सा रिएक्शन है, क्या नाम है रिएक्शन का बताइए सफिया। आप अपने घर में ही गुम हो जा रही हैं, है ना? इटार्ड इटार्ड रिएक्शन, रिएक्शन, इटार्ड हाँ रिएक्शन। फिर CHO हो जाएगा ये, ठीक है। और NO2 को कुछ नहीं होगा, NO2 वैसे ही का वैसे रहेगा, सही है ना? ठीक है, और दूसरा सवाल आपको करना था, एक सवाल था इसमें था, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड, नहीं फेनॉल से बेंजल्डिहाइड था ना, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फेनॉल ऐसे था शायद, बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। ध्यान से देखिए ये, अब नाउ सी दिस इज व्हाई वी शुड हैव चैप्टर्स, हैलो एल्केन हैलोरीन पढ़ना चाहिए, फिर अल्कोहल पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन। क्यों? देखिए आपको कहां से कहां जाना है, फेनॉल से बेंजल्डिहाइड, तो डायरेक्ट ऐसा कोई तो रिएक्शन, सॉरी फेनॉल को हमने बनाना भूल गया, OH यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे CHO हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वी नेवर हैड एनी रिएक्शन इन विच वी वर गोइंग फ्रॉम फेनॉल टू बेंजल्डिहाइड। हमने एल्डिहाइड के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए थे, बट देयर इज अ रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। फेनॉल का रिएक्शन होता है जिंक डस्ट के साथ, जो बनाता है सिर्फ बेंजीन, और बेंजीन के साथ आप क्या कर दीजिए, गैटरमैन कोच रिएक्शन, अगर आपको याद हो गैटरमैन मिल गया आपको, कोच के लिए क्या मिलेगा, CO प्लस HCl, यस सर। ठीक है। और देखिए ये रिएक्शन आपके पास अल्कोहल चैप्टर में होगा ही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। प्रॉपर्टीज फेनॉल का, शॉर्ट सिंगल रिएक्शन, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, इसके आखिर में ये देखिए फेनॉल जिंक लेके बेंजीन, ठीक है। तो ये चीज आपको तभी याद रहेगी अगर, एक तो मतलब अल्कोहल पढ़ने के बाद भी नहीं याद हो सकता ये रिएक्शन, लेकिन मान लीजिए किसी लड़के ने अल्कोहल मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, उसका तो कोई चांस नहीं है ना कि ये रिएक्शन उसको याद होगी। अल्कोहल वाले ने मान लीजिए इल्ला माशाल्लाह तौफीक हुई तो रिवाइज करके आ गया हो बच्चा, ठीक है, तब तो शायद याद भी हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए अल्कोहल, एल्डिहाइड के लिए अल्कोहल फॉर्मूला थोड़ी ना कोई रिवाइज करेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है इस वजह से। दिस इज द रिएक्शन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फेनॉल, लिख लीजिए जरा। यस। Once you're done, now the method of preparation of ketones only वो खत्म, aldehydes only वो कल खत्म हो गया था लास्ट क्लास में, राइट। C method of preparation of both aldehydes and ketones. Is everyone done? Yes or no, please tell me. यस। Right here, number 1. From alcohols. From alcohols. Alcohols में नंबर A पार्ट आप दीजिएगा by oxidation. Now oxidation of alcohol we have already done it, but still I'm going to revise it because we have a few new students, है ना। देखिए अल्कोहल चैप्टर में जो लोग पुराने स्टूडेंट है वो प्लीज यहाँ पे जाइएगा।
option with carboxylic acid is the pathway. See here, guys, all of you. Oxidizing agent, strong oxidizing agent, weak oxidizing agent. ठीक है ना? I'm just copying this part. ये नए बच्चों के लिए खासतौर से, जो पुराने हैं उनके पास तो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? So from oxidation, अब ऑक्सीडेशन आपके पास दो किस्म के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो दो किस्म के होंगे. You have strong oxidizing agent and weak oxidizing. ठीक है, तो पहले इनका चार्ट लिख लीजिए आप. Strong and weak. जल्दी जल्दी लिखिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को. 3 मिनट के लिए, 2 मिनट में नहीं हुआ तो. एक चीज आपको हम बता देते हैं. You don't have to remember this part. Neither you have to remember pyridinium chlorochromate. आपको बस ये पार्ट याद करना जरूरी है, that is PCC. Similarly, you have to remember what is PDC. ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए. PCC is a weak oxidizing agent. PDC is a weak oxidizing agent. You don't have to remember PCC का full form क्या है. You don't have to remember PCC का formula क्या है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि PCC क्या है. Strong या weak? Tell me guys. PCC is a, अरे लिखने के लिए परेशान बच्चे. PCC क्या है? वीक है, स्ट्रॉन्ग है? Weak. Weak. वीक. हाँ, ये याद रखना, ठीक है. आप ना एक बार हमें व्हाट्सएप में ना अपना सिलेबस भेज दीजिएगा जो आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है? टेस्ट का आ चुका था. आपने भेज दिया है क्या? डेट इज 14 सितंबर ना राजन? Yes, sir. केमिकल काइनेटिक्स दो बार दिया उन्होंने. सॉल्यूशन इलेक्ट्रो डीएनएफ का केमिकल काइनेटिक्स पैनल के नाम. सबने लिख लिया? Yes. Yes, sir. Wait. I need to write. हाँ जल्दी लिख. ये वीक वाला ये अभी इंपॉर्टेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिख लिया बिकॉज़ इट विल बी यूज्ड लेटर ऑन. अब जो लोग अल्कोहल फेनॉल ईथर्स नहीं पढ़ा इन्होंने हमारे साथ, दे शुड आल्सो हैव दिस लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? बड़े आगे हो गया, सबका हो गया. हाँ राजन. Yes, sir. माजिद आपका घर कहाँ है? हम घर भूल गए आपका. माजिद, वेयर आर यू फ्रॉम? सऊदी से. सऊदी. अरबी हैं आप? अरबी हैं आप? नहीं.
हाँ तो फिर अरे इंडिया में कहाँ से हैं? Hyderabad. हैदराबाद। okay। तो हम क्या कर रहे थे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ। और कहाँ थे हम लोग? ऑक्सीडेशन, अच्छा ठीक है ठीक है, चलो अब लिखिए। बराबर 1 डिग्री अल्कोहल। रासिन, आपको 1 डिग्री 2 डिग्री के बारे में पता है क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री, Yes, sir. ठीक है। सो 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास होगा, सो यू विल हैव RCH2OH। एंड इफ यू यूज WOA, WOA क्या है बताइए गाइस, व्हाट इज WOA? अरे लिखने के लिए इतना मरे रहते हैं भाई, बताओ तो WOA क्या है? वाह, नहीं क्या है WOA? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई रिएजेंट का नाम नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट व्हाट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मिलेगा आपको? RCHO। बात समझ में आई सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। गॉट दिस गाइस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. ठीक है। इफ यू हैव 2 डिग्री अल्कोहल, that means you will have RCH, R dash, some OH group here. And if you use weak oxidizing agent, भाई हम फिर से बता रहे हैं, आप लोग एग्जाम में WOA मत लिख के आइएगा। यू हैव टू राइट वन ऑफ दीज, PCC, PDC, CrO3 या कॉलेज रिएजेंट। बात समझ में आ रही सबको? माजिद, राजिन, सफिया, अरे एक बार हुआ ये था, हमने पूछा कि हाउ विल यू कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड। एक बच्चे ने जवाब दिया, सर वी विल यूज WOA। हम बोले WOA क्या होता है? बोलता है रिएजेंट होता है ना सर, जो ऑक्सीडाइज करता है। तो WOA कोई रिएजेंट नहीं है, ठीक है। रिएजेंट जो है वो आपके पास लिस्ट में है, ध्यान दीजिए। You have R, then this will be converted to C double bond O, and then here you will have R dash। चलिए हम आपको बता रहे हैं, fill in the blanks कीजिए आप लोग, ठीक है। सवाल लिखिए, fill in the blanks। सवाल नंबर 1, और लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 5 सवाल 5 मिनट। दूसरी चीज, हम आपका टाइमर स्टार्ट करने से पहले बता रहे हैं एक बात, प्लीज ध्यान दीजिए। जब टाइम ओवर हो जाए ना आपका, 5 मिनट जब हो जाए, तो जितने सवाल हुए रहेंगे आप भेज दीजिएगा। प्लीज सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन, गलत सही आधा अधूरा। आपने 5th नंबर सवाल में ऐसे करके इतना बनाया है, इतने में छोड़ के भेज देना है, ठीक है। आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला यहाँ पे, टाइम का ख्याल रखिएगा प्लीज। When I will ask you guys to send me, you will send it to me, चाहे जितना वो, ठीक है। 5 मिनट टाइम है, जल्दी कीजिए। जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, हम समझा देंगे। देयर आर सम क्वेश्चन जिसमें हमको समझाना पड़ेगा, वो आपको भली अच्छी से पता है। जो हो रहा है आपसे उसको कीजिए जल्दी जल्दी, 5 मिनट में भेजिए। एंड आई नीड वाटर, आई विल बी बैक इन अ सेकंड गाइस, ठीक है।
5 minutes are over. राजन ने भेजा है. Oh my God, क्या राइटिंग है राजन आपकी? मन नहीं लग रहा क्या पढ़ाई में आपको? राजन, इतनी बेदिली से लिखा है आपने. Oh my God, चलिए पहला आंसर सही है, दूसरा वाला सही है, उसको थोड़ा और प्रॉपर कर किया जा सकता है. तीसरा आपको नहीं पता क्या करना था. फोर्थ में आपने सही किया है, फिफ्थ में भी आपको नहीं पता क्या करना. ठीक है, अदर्स प्लीज सेंड द आंसर्स. नहीं, टाइम अभी बाकी है, थोड़ा बाकी टाइम ले ले. स्क्रॉल अप. पिया, अच्छा कैमरा ऑफ कर दिया आपने? पिया, क्या हो गया? ज्यादा नेट खा रहा है. समझ ही नहीं आया. नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं आप? यस पिया, कैन यू रिपीट? आपकी आवाज भी नहीं आ रही अब तो सही से. Sir, this question how to answer, sir? Still nothing. Can anyone understand what Pia is saying? Sophia, समझ में आया? No, sir, I don't hear her. चैट में बताइए सफिया क्या हो गया. Okay, guys, please send the answers. The time is over. Guys, send the answer quickly. फोटो खींचिए, लिखना बंद करें आप लोग, लिखना बंद करें, जल्दी फोटो भेजिए तुरंत. फोटो भेजिए जल्दी. हाय हाय. Guys, I'm waiting. Majid, Safia. I don't know how to answer this. कुछ नहीं आ रहा आपको पिया? ठीक है, हम बता देंगे. ये आपके पास है ना, ये लिस्ट है? ये आप थोड़ा माइक एक ठीक कीजिए, अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है. Deborah, first one is correct, second one is also correct, very good. थर्ड आपको नहीं पता, फोर्थ में 1 2 3 करेक्ट है. ठीक है. अच्छा, एक चीज आई थिंक 1 2 3 4 कर दिया. रासिन, आप फोर्थ वाले क्वेश्चन में सिमिलर सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आप एक काम कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में बताइए तो कितने हैं. राजन, टर्न योर माइक ऑन. yes sir. सेकंड क्वेश्चन में कितने कार्बन एटम्स हैं रिएक्टेंट में? 3 है. फिर से देखिए. 2. और आपके प्रोडक्ट में कितने हैं? Okay, got it. और फिर फोर्थ में. ठीक है, इसको सही कीजिए. डेबोरा, आपके आंसर्स ठीक है, सही है. गाइस प्लीज सी हियर. See, I want to go from this is 2 degree alcohol to ketone. So what I will do, I will use a 2 degree alcohol से ketone जाने के लिए I will use a weak oxidizing agent. You can use any one of them, है ना. जनरली आपको NCERT में कीटोन बनाने के लिए प्रेफरेबली हमने देखा यूज किया जाता है CrO. ठीक है, आप लोग कुछ भी ले सकते थे. दिस कैन बी CrO3,
this can be PCC, this can be PDC. आप इनमें से कुछ भी reagent ले सकते थे और everything is correct. When I use CrO3 with this is 1 degree alcohol, so 1 degree alcohol, this is weak oxidizing agent, so it is going to give you aldehyde. Now the number, अच्छा एक बात बताओ, सफिया और माजिद भेजो यार आंसर, आंसर भेजिए, बोला अभी आंसर भेजिए, आंसर जल्दी भेजिए। नंबर आप, अरे यार कितनी बार हम नंबर दें यार आप लोगों को, नंबर इतनी बार लिखा रहता है, आप लोग नंबर नहीं लिखते हैं। 7530998007, चलिए जल्दी भेजिए। सफिया आपने भेजा, पहला वाला सही है, दूसरा दूसरे वाले में आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया, वही होगा, सेम थिंग। सफिया Yes, sir. कुछ चेंज नहीं होगा, CrO3 में OH था, OH ही रहेगा। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज सी हियर, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। माजिद आपका आंसर नहीं आया, जल्दी भेजो यार। ठीक है, देखो क्लियर गाइस, 1 degree alcohol CrO3, CrO3 is a weak, mic on करें, CrO3 is weak oxidizing agent or strong oxidizing agent, mic on करें, जल्दी बताएं, CrO3 is weak or strong? Weak, sir. CrO weak 1 degree alcohol जब weak oxidizing agent से react करता है तो क्या बनता है? If 1 degree alcohol reacts with weak oxidizing agent, what does it form? 1 degree alcohol with weak oxidizing agent, what does it form? बोलो भाई, नहीं पता किसी को? लिखाया हुआ तो है। हाँ करेक्ट फिया, क्या बनाता है? Aldehyde. एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे R कार्बन और एक कार्बन, यहाँ पे भी R कार्बन और एक कार्बन, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी सेम। यहाँ पे 2 कार्बन है, सो यू विल गेट CH3CHO, 2 कार्बन एटम्स है। नाउ प्लीज सी हियर गाइस, दिस सिंबल इज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो व्हेन यू विल ऑक्सीडाइज 2 डिग्री अल्कोहल, आपको क्या मिलेगा? दिस इज 2 डिग्री ना, ये पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दिस इज 2 डिग्री, सही है? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? अब ये बताइए 1 डिग्री, फोर्थ वाला अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री, जल्दी बताओ। माइक ऑन रखे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने से कुछ नहीं होगा, माइक ऑन रखे बताइए, फोर्थ वाला 1 डिग्री या 2 डिग्री है? ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज टेल मी, 1 डिग्री और 2 डिग्री, किसी को नहीं पता? राजिन, माजिद, माइक ऑन करो यार, जल्दी करना है भाई, टाइम क्यों लगाते हैं आप लोग इतना? माइक ऑन करके रखिए, माइक ऑन रहना चाहिए, माइक ऑन। फोर्थ अल्कोहल, इट इज 1 डिग्री और 2 डिग्री, माजिद नहीं पता? जल्दी बता दो ना, पता नहीं पता, नहीं पता, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, माइक ऑन रखो ना यार। थैंक यू वेरी मच। क्या OH फंक्शनल ग्रुप है? OH फंक्शनल ग्रुप है ना? अरे बोलो, जल्दी बोलो यार। Yes, sir. माजिद नहीं पता? ये भी नहीं पता? अरे जोर से बोलो यार, आवाज ही पता नहीं है, आ रही। पता है। OH क्या है? What is OH? Functional group. This carbon, it is directly attached to functional group, सही है? अरे बोलो, इसको Yes. बोलेंगे अल्फा, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। अल्फा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन, सही है? Yes. इसको बोलते हैं बीटा। तो अल्फा के पास एक ही बीटा है ना, ठीक है? कितने बीटा है? एक बीटा। एक। यहाँ पे देखो 1 2 3, अल्फा कौन है? 1 2 3 में अल्फा कौन है? क्वेश्चन नंबर 1,
1 2 3 में अल्फा कौन है? नहीं पता? नहीं पता? अरे हाँ ना, 2 है, ठीक है, वेरी गुड। और ये 2 वाला कार्बन कितने, ये अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा के पास कितने बीटा है? डायरेक्टली अटैच कितने से आई? अल्फा एक अल्फा 1 से अटैच है डायरेक्टली, जी 3 से भी डायरेक्टली अटैच है ना, हाँ तो कितने बीटा से कार्बन से अटैच है? 2 से। यस तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके ठीक है, यहाँ देखो, जी जी ये अल्फा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये अल्फा, यस ये इसका बीटा, और ये भी इसका बीटा। कितने बीटा? 2 तो क्या डिग्री हो जाएगा? 2 ये वाला बताओ, ये अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, क्या है? कितने बीटा है इसके पास? पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू अल्फा कार्बन। अल्फा कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? पॉइंट कर करके, ऐसे हवा में नहीं करना बिल्कुल। अपने नोटबुक में पॉइंट करो, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, वैसे ही होगा। हवा में कीजिएगा, गलती होगा। टू आ गया 2? हवा में नहीं करना था, ठीक है ना, तो बिल्कुल अभी हवा में अल्फा हो गया, ये इसका एक बीटा और ये इसका दूसरा बीटा, बिल्कुल ऐसे किया आपने, जी ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज सी इन द रिएक्शन इटसेल्फ आई टोल्ड दैट 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि 1 डिग्री कौन होता है, 2 डिग्री कौन होता है, ठीक है ना। तो once you have got to identify that, then you have to identify whether it is a strong oxidizing agent or weak oxidizing agent। ध्यान से देखिए, here we are having हम थोड़ा अल्फा बीटा को इरेज कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, दिस इज 1 डिग्री, सही है, एक बीटा था ना इसका। अब ये बताइए पीसीसी, अच्छा ये तो बताया हमने। हाँ ये बताइए पीसीसी जो है आपके पास वीक है स्ट्रांग है? वीक इससे क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? सीएचओ क्या होता है? नहीं पता? एल्डिहाइड यार, ये एल्डिहाइड होता है, ये तो याद रखो, और ये कीटोन होता है। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए था, थॉट दैट आपको पता होगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए 1 डिग्री क्या देगा, आप बताइए माजिद। एल्डिहाइड एल्डिहाइड कितने कार्बन वाला? कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड? एक एक कार्बन वाला। क्यों एक कार्बन वाला? नंबर ऑफ कार्बन विल बी सेम। जो अल्कोहल में कितने कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन इन दिस अल्कोहल? 2 नहीं, आपको नहीं आ रहा, ठीक है, आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से शायद आप उतना वाकिफ नहीं है। यहाँ पे 3 है कार्बन एटम्स, ठीक है, एक तो ये ग्रीन वाला होगा, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, 3 कार्बन एटम्स है, ये 3 कार्बन एटम्स वैसे ही के वैसे रहेंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CHO आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए K2Cr2O7, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि आई हैव रिटन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए एसिडिक K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग, एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। अगर एसिडिक नहीं है तो आप इसको वीक में ही मानिएगा, और ये किसमें आ जाएगा, इट इज गोइंग टू गिव यू कीटोन, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री, आपको यहाँ पे कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। K2Cr2O7 का और Na2Cr2O7 का ध्यान रखिएगा खास तौर से। बेसिकली एक बार ये सवाल पूछा गया था, एंड इट वाज 2 डिग्री अल्कोहल जनरली दे डोंट ऑक्सीडाइज वेरी इजीली, ठीक है ना, उनका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से नहीं होता है। इस वजह से अब K2Cr2O7 है, उसमें अगर ऑक्सीडाइज होगा नहीं होगा, उसमें लफड़ा था। तो आंसर जब देखा गया सीबीएसई का, तो उसमें दे हैव गिवन कीटोन। So the reason was that K2Cr2O7, it was in neutral condition, it was not acidic। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको।
चले, I hope everyone is written down. Right, next, by catalytic dehydrogenation, the part. प्रिया, अब आपको समझ में आया या नहीं आया? In 1 degree alcohol, that means if you have RCH2OH, if you react this with copper at 573 Kelvin, high heat, you will get aldehyde, that is RCHO. The number of carbon atom will still be the same. This is aldehyde. If you have 2 degree alcohol and you do RCH, some R dash, in middle you have OH, again copper with some heat, you will get R, C double bond O, R dash. This is ketone. You write a note. 3 degree alcohol gives alkene. ठीक है, ये alcohol phenol ethers में ये वाले reactions भी हैं. Another thing, please write Ag can also be used. So we used. ठीक है, so instead of copper we can use Ag also, but again Ag is quite expensive, तो हम लोग copper use करते हैं. भेजा. All of it and yes or no, please tell me. Yes, sir. No, sir. Anyone still? Sure. बड़े आगे राजन हो गया. राजन डन. Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा बाय और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. सेकेंड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, नंबर ए प्लीज राइट. हाइड्रेशन ऑफ alkynes. Hydration of alkynes. ठीक है, प्लीज स्टॉप राइटिंग. ठीक है, अभी आप लोग लिखना बंद कर दीजिए. ये बात देख लीजिए रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसके बाद आप लोग फिर आगे लिखिए. ध्यान से देखिए. Alkynes, that means I will have R, C triple bond, C and some R. अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, कुछ लिखिएगा नहीं आप लोग, प्लीज पेन वेन छोड़ के रखिए, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल नहीं लिखना है. ये R अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है. सिमिलरली दिस R कैन आल्सो बी हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप. यानी कि आपके पास क्या केस बन सकते हैं, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C H, आपके पास H C ट्रिपल बॉन्ड C H, आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3. ये सारे के सारे केसेस है ना, समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं. ठीक है, तो R जो है आपके पास जनरलाइज्ड है. अभी R का मतलब ये जरूरी नहीं है कि अल्काइल है, R की जगह क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है. ठीक है, now what I am going to do, I am going to add water. Hydration का मतलब we are going to add water. Please don't write anyone. माजिद क्या कर रहे हैं आप? लिखना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है. ध्यान से देखिए. When you are going to add water in the presence of HgSO4 and H2SO4, HgSO4 and H2SO4. ठीक है ना सर, इसको छोड़ दीजिए अभी, HgSO4 H2SO4 को छोड़ दीजिए. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वाटर ऐड करना है. वाटर का फॉर्मूला होता है HOH, है ना, H2O यानी कि H ऑक्सीजन एंड OH. Now one of the carbon atom will get the hydrogen, दूसरे कार्बन एटम को मिलेगा OH. इतना ध्यान रहेगा सबको?
कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? एक को मिलेगा हाइड्रोजन, दूसरे को मिलेगा OH. Now please see what is going to happen. As this carbon will get hydrogen, this carbon will get OH. One of the pi bond will break. You will have R C double bond C. एक सेकंड, थोड़ा छोटा लिखते हैं. We'll have R C double bond C and then R. एक को मिला था क्या? एक को मिला था हाइड्रोजन और दूसरे को मिला था OH. ठीक है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम के लिए ध्यान से सुनिए. अब यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है. This hydrogen atom, it is connected with oxygen atom, which will be pulling electron because oxygen is more electronegative. वो pull कर रहा है electrons को. So this hydrogen will get a delta positive charge. सही है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बिल्कुल क्या होता है. आप समझिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे बराबर के इलेक्ट्रॉन. Here we are having positive charge and here we are having electrons. So this electrons can easily get attracted towards the positive charge and can attack, right? सही है ना? Electrons are what? Electrons are negatively charged, right? So electrons can get attracted towards the positive charge and they can attack. And the similar thing happens. Please see here, guys. Can you see the pi bond here? ये pi bond नजर आ रहा है? So pi bond, if you remember something from the 11th standard, pi bond कैसे बनता है? इस तरह से. pi bond को हम लोग ऐसे दिखाते थे, ऊपर एक लोग, नीचे इस तरह से लोग. So here we are having electron density, and just above it we are having hydrogen with a highly delta positive charge because it is attached with electronegative oxygen atom. So this pi bond from here, it will attack on the hydrogen atom. ठीक है, हम इसको इस तरह से दिखा देते. This is going to attack on hydrogen atom. It will attack on hydrogen atom. Hydrogen will say, I can only make one bond. I can only make one bond. If I can only make one bond, then if you're attacking, I have to break my bond. So they will say, okay, fine, break this bond, and this bond will go here. So this is the first attack, and this is the second movement of the electrons. Now what you are going to get, please see. Double ऑटोमेरिज्म. क्या बोलते हैं? ऑटोमेरिज्म क्या होता है यहाँ पे? बिल्कुल एक बार ध्यान दीजिए. आप कितना नहीं है डबल बॉन्ड आपको सबको है ना? फिया, राजन, सफिया, माजिद. कोई नहीं है, कौन नहीं है? Everyone is here only, no? Okay, guys, please see here. देखिए ध्यान से. Can you see the screen now? हाँ जी बताएं. All of you can see the screen? हाँ या ना? No, sir. No, you can't see the screen. अभी तक लोड नहीं हुआ. लोडिंग बता रहा है. क्या बता रहा है?
कुछ नहीं। कुछ नहीं बता रहे। Not visible. How the host is changed. It's not visible. अच्छा, I think I'm not host or what? Deborah is the host. Deborah, can you please make me host? Yes, Deborah. Deborah, can you make me host? She here या फिर वो है ही नहीं? Yes, Deborah. Deborah, am I audible? हाँ, Deborah, can you make me host? आप host बन गए हो. 1 minute चाहिए आपको होस्ट बनाने के लिए, जल्दी बनाइए. थैंक यू Deborah. चलिए. हाँ जी, अब बताइए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? Yes, sir, it's visible. Visible now? Here when we having CH और यहाँ पे आपके पास था OH. ठीक है. And here you had R. ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. This pi bond, it is attacking on the hydrogen like this. This bond is moving here. अब ये एक बात ध्यान से देखिएगा. ठीक है. This carbon atom, it is having a double bond. इसको बोलते हैं En. And it is also having a OH, तो इसको बोलते हैं all. तो ये क्या होता है? Enol form. And after tautomerism, what happens? After tautomerism, you will get R, CH2 and C double bond O, R. इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म. क्या बोलते हैं इसको? कीटोन टाइप को बना ना, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म. दिस इज इनॉल फॉर्म, दिस इज कीटो फॉर्म. और इस पूरे के पूरे फिनोमेना को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म. क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म. पता है शायद आप लोग को नहीं पता हो या फिर भूल गए हो आप लोग, बट दिस रिएक्शन वाज देयर इन योर 11th स्टैंडर्ड आल्सो. बोलते हैं टॉटोमेरिज्म. ये वाला जो रिएक्शन है एल्काइन, इफ यू रिमेंबर हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर था. हाइड्रोकार्बन में आपने क्या क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन. एल्काइन, एल्काइन के रिएक्शन में ये भी था टॉटोमेरिज्म. ठीक है. ऑल ऑफ यू गॉट द रिएक्शन? यस और नो? प्लीज टेल मी. अभी बताइए रिएक्शन समझ में आया सबको? सफिया एंड माजिद. यस. सफिया, माजिद, राजन, Yes, sir. डेबोरा, सपोज. ठीक है. चलिए अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं.
Done, sir. ऑल ऑफ डन, सब लिख लिया आपने? Yes. ध्यान दीजिए, वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंट केसेस। एक बात बस आपको लिख लेना यहाँ पे जो नोट डाउन करनी है। अगर हम सीधा रिएक्शन लिखें, सीधा रिएक्शन अगर हम लिखें, सो यू हैव आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, पानी डालना है आपने, एंड यू विल हैव Hg2+, और क्या होगा आपके पास H+, राइट? Hg2+ मींस HgSO4 था ना, उसमें Hg2+ फॉर्म में था, and H+. So if you see this one also, this is also meaning that we are having hydration of alkyne. You will have R C H2 and then carbon double bond O R. एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डबल बॉन्ड O attaches to that carbon which has less number of hydrogen atom, which has less number of hydrogen atom. ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आपके पास क्या क्या केसेस आ सकते हैं, CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H H2O Hg2+ in the presence of H+। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो कार्बन एटम्स हैं A एंड B। हाउ मेनी हाइड्रोजन इन A कार्बन? A कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? हाउ मेनी कार्बन इन A हाइड्रोजन, सॉरी, हाउ मेनी हाइड्रोजन इन A कार्बन? ए वाले कार्बन, अरे भाई जल्दी बताओ ना यार, छोटा सा सवाल करते हैं, आप लोग माइक ऑफ करके बैठ रहते हो। हाउ मेनी हाइड्रोजन इन द A कार्बन? माजिद, राजन, फिया, सफिया, डेबोरा, हाउ मेनी हाइड्रोजन इन द A कार्बन? नहीं पता? जल्दी बताइए डेबोरा, टर्न योर माइक ऑन। लिखने में आप लोग क्यों बिजी रहते हैं यार? स्क्रीन पे देखिए, एक बार समझ में आ जाएगी बातें तो फिर आपको लिखने देखना नहीं पड़ेगा ज्यादा। जल्दी बताइए ना, हाउ मेनी हाइड्रोजन इन एक कार्बन? नहीं पता किसी को? 0. Zero. माजिद आपको नहीं पता क्या? 0 अभी बोल रहे हैं आप? बी में कितने हैं? 1. अरे बी में कितने कार्बन? 1। तो डबल बॉन्ड ओ कहाँ लगेगा, ए में या बी में? A. ठीक है, और कितने कार्बन आइटम्स है? 3। ध्यान से देखिए, 3 कार्बन आइटम आपको बनाने हैं। इसको मिल जाएगा 2 हाइड्रोजन CH3, बीच वाले को मिलेगा डबल बॉन्ड O, और दूसरे वाले को मिलेगा H2। एक हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन और मिल गए CH3। देखिए वाटर है ना, तो ऐसे हो रहा है, ऑक्सीजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर। जहां पे आपके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे आपको क्या दे देना है, डबल बॉन्ड O, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब बताइए ए या बी किस में लगेगा डबल बॉन्ड O? Could be ए या either बी किस में लगेगा? because it's symmetrical. हाँ, इट्स सिमेट्रिकल, वेरी गुड। यहाँ पे आपके पास CH3, अगर एक में डबल बॉन्ड O लगा, दूसरे को मिलेगा CH2, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे CH3। और देखिए इसमें क्या होगा बताइए, ए या बी? Similar to the राजिन, previous one. ठीक It'll है, be similar to the आपको नहीं आ previous रहा one माजिद? because it's symmetrical on both ठीक है sides. ठीक है, माजिद आपको नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई माजिद कुछ पूछ रहे हैं आपसे हम। जी सर। क्या जी सर? क्या जी? आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा समझ? नहीं जोर से बोलो एक तो बात, साफ साफ बोलिए पहले नहीं तो। नहीं डरने वरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो, छुप के पढ़ाई कर रहे हो क्या आप? नहीं हाँ तो फिर नहीं आ रहा।
आपको हाइड्रोजन काउंट करने आते हैं? हाँ। तो बताओ यहाँ ए में कितने हाइड्रोजन है 0 और बी में? 1 तो डबल बॉन्ड ओ किस में लगेगा? ये लाइन पढ़ो पहले। डबल बॉन्ड ओ अटैचेस टू दैट कार्बन which has which has less number of hydrogen atom. तो बताइए ए में लगेगा या बी में लगेगा? A में लग गया। और दूसरे वाले बी को क्या मिल जाएगा? 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं ना। ऑक्सीजन तो मिल गया ए को, 2 हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा? 2 हाइड्रोजन किसको मिलेगा? बी को। बी के पास पहले से कितने हाइड्रोजन थे? 1 कितने हाइड्रोजन? एक। कितना मिला? 1 2 कितना मिला? 2 टोटल कितना हो गया? 3 समझ में आ रहा है? जवाब दीजिएगा अगर तभी जी समझ में आएगा, जवाब नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तीसरे वाले केस में बताइए ए और बी कहाँ पे हाइड्रोजन कम है? ए और बी किसमें हाइड्रोजन कम है? दोनों में एक दोनों ही इक्वल। तो ऑक्सीजन कहाँ लगेगा? ऑक्सीजन कहाँ लगेगा? किसी में भी लग जाएगा ना। ठीक है। आपने लगा दिया। जैसे मान लीजिए इसको आपने दे दिया 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन पहले से था तो CHO। ठीक है। जल्दी। ठीक है, सबने जल्दी बताएं। Is everyone done writing? If you have not done, please Yes, let me sir. know. no sir. अधिक पॉइंट लिखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड cannot be prepared by this method. Next point. Aldehydes other than acid aldehyde cannot be prepared by this method. फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। ध्यान से सुनिए, अभी मत लिखिए। फॉर्मल्डिहाइड एज अ फॉर्मूला HCHO एंड वी आर प्रिपरेशन, दिस प्रिपरेशन किससे हो रहा है बताइए जरा। व्हाट आर वी यूजिंग एज अ रिएक्टेंट? व्हाट आर वी यूजिंग एज अ Water. रिएक्टेंट? वाटर नहीं है Water. और कुछ और नहीं। वाटर तो रिएजेंट है। सबस्ट्रेट क्या होगा? रिएक्टेंट। क्या लिखा हमने? हाइड्रेशन ऑफ। अरे भाई, नहीं लिखा क्या आप लोगों ने? अरे नोटबुक देखो भाई मेरे, Alkyl. नोटबुक देखिए। State अल्काइन हाइड्रेशन। हाँ, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन बनाने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना। अल्काइन मतलब
ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन चाहिए, आया ना? Yes, sir. अच्छा, अगर 2 कार्बन चाहिए तो 2 कार्बन से 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन सकता है क्या? बताइए। 2 कार्बन से 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड नहीं बनेगा, तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा। दूसरी चीज आपने देखा यहाँ पे, जब आपके पास इफ यू हैव CH, तब क्या बन रहा है? एक तरफ आपके पास एल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ CH, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? कीटोन। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, तब भी बनेगा कीटोन। इफ यू डोंट हैव एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड, तब बनेगा एल्डिहाइड। ध्यान से देखिए, इफ यू हैव एल्काइल ग्रुप ऑन वन साइड तो कीटोन, एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड, बोथ दी साइड आर हैविंग एल्काइल ग्रुप, तब भी कीटोन। इफ यू हैव नो एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड, यानी CH, सिर्फ एक ही केस में यू विल गेट एल्डिहाइड, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज एसिड एल्डिहाइड। ये आपका एसिड और ये आपका एल्डिहाइड, राइट? So you can only form acid aldehyde from this particular method of preparation. इसके अलावा कोई भी aldehyde नहीं बन सकता। Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. जल्दी छापिए, लिखना जो चालू किया था आप लोगों ने। फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में होते 1 कार्बन, रिएक्टेंट में होंगे 2 कार्बन, तो वो 2 से 1 बन ही नहीं सकता। Let me know once you're done, guys. And Anyone still writing? Anyone still writing? No one No, is sir. writing. ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक और रिएक्शन कराना था, लेकिन टाइम इतना ज्यादा निकल गया है, आप लोग का फिर बैच थोड़ा स्लो हो जाएगा। बच्चे अगर नए नए आते रहे, क्या करें? चलिए काम कीजिए, लिखिए बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, लिख लीजिए रिएक्शन। फिर अगर हम अगले क्लास में कराएंगे ना, सब कुछ भूल जाइएगा आप लोग, ठीक है ना? एक बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर देते हैं यहाँ पे, राइट? बी पार्ट, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हो गया, बाय बी पार्ट बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है आप लोग, ठीक है? ध्यान से देखिए, एल्कीन होगा आपके पास, सो एल्कीन विल बी ऑब्वियसली हैविंग कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, and there will be groups attached like this. ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ लिखिएगा मत। देखिए, अगर हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा ना, तो ये जो 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, दे विल बी एज इट इज, उनको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन रहेगा, अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। यू विल ब्रेक इट। क्या करेंगे? इसको तोड़ दीजिएगा। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है वो हम बता देते हैं आपको पहले, उसके बाद तोड़िएगा। देख लीजिए पहले, उसके बाद लिखिएगा, अभी कुछ मत लिखिए। रिएक्टेंट जो है आपके पास, यहाँ पे आपके सबसे पहले रहेगा O3, ओजोन। सेकंड में रहेगा ZnH2O। ठीक है, देन यू विल ब्रेक दिस। ब्रेक करने पे आपको क्या मिलेगा? देखिए, डबल बॉन्ड के साथ लिखिएगा, ऐसे कार्बन है, ऊपर नीचे बॉन्ड, और ये टूटा हुआ बॉन्ड, इतना लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना बोलिए। ठीक है, और इधर Yes, टूटा sir. हुआ क्या है? ऐसे डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर इधर बॉन्ड टूट के ऐसे हो जाएगा। माजिद, राजिन, फिया, डेबोरा, प्लीज टेल मी यस और नो। Yes. इतना कर सकते हैं तोड़ के? ठीक है, Yes. अब बस आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड पे O लगा देना है, इस डबल बॉन्ड पे O लगा देना है, ये 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. ठीक है, इधर O लगा देना है, इधर O लगा देना। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, देखिए कुछ मत लिखिएगा। yes, sir. CH2 डबल बॉन्ड CH2,
दिया आपने O3, ध्यान से देखो बिल्कुल, Zn और H2O, Zn और H2O, क्या करना है, इसको तोड़ दिया आपने, क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस ऐसे करके O डबल बॉन्ड CH2, कर सकते हैं? हाँ या ना Yes, sir. बताइए। और देखिए और देखिए और देखिए, you have CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या करना है, देखिए O3 पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में ZnH2O। ध्यान से देखिए, ध्यान से बिल्कुल, हम जिस तरह से करें ना, ऐसे हमने पहले काटा, आप भी पहले से काटिएगा, तोड़िएगा पहले, ठीक है ना। आपने इसको पहले ऐसे तोड़ा, फिर आपने लिखा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे CH3 है, फिर राइट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ऐसे ही, फिर O प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे क्या लगेगा, O, फिर आएगा CH बात समझ में आ रही सबको, है ना। Yes, sir. और देखिए और देखिए और देखिए और देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, और इस कार्बन में एक और CH3 लगा हुआ है। अब देखिए, नंबर 1 स्टेप O3, सेकंड स्टेप CH3 जिंक एंड CH H2। double bond O plus हाँ बोलिए, हाँ O एक double CH3 bond CH, C attached to CH3 and the other CH3. समझ में आ रहा है सबको। Yes. Yes, sir. और देखिए और देखिए और देखिए, डबल बॉन्ड CH2, पहला स्टेप में O3, सेकंड स्टेप में Zn H2O, ये ऐसे कटेगा, तो ये साइक्लोपेंटेन बना, फिर डबल बॉन्ड O आया, प्लस CH2 पे डबल बॉन्ड O, मतलब उल्टा करके रहेगा, लेकिन समझ में आ रहा है ना सबको। CH2 बचा था ना, उसको डबल बॉन्ड O आ जाएगा। चलिए इतना छापिए, ये ओजोनोलिसिस ऑफ एटम, ये यहाँ से टूटेगा ऐसे, जल्दी लिखिए।